welcome you all to the first ever episode of MN Mujahid Show, where the real heroes of our society will share their life experience to inspire someone, to motivate someone. So, I would like to introduce you all to our first guest, one of the hero of our society, Mr. Muhammad Mubin. So, please welcome to our show. And in this interview, we are going to ask so many questions about his life and we can learn so many things from him. So I would like all of you to stay tuned and watch the full video so that you'll get a lot of information. If you look back in your life, what would you say in one word? First of all, Alhamdulillah for everything, whatever the God has given me. What is the one advice that you want to give to the this young generation? Just focus on your health. Then, if you focus on your health, then you will achieve everything in your life. This is my one fitness is the most important thing in every person life. Like everyone is they want to be fit. If they are fit, they are take caring of their health, so they can achieve everything in. So one word I can say, health is important. According to my opinion, health is the most important gift to God given us. We have to take care of our health. What motivates you to keep going in life? Give my family good life, to earn as much as I can earn money. So if I'm earning good money, so the money is more important thing in my life. If I'm earning, so I can fulfill my family, my wife, especially my wife and kids and all, and my father, my sisters, my brother, everyone. We can help, we can support them for everyone. Money is the most important in my life as of now, which I analyze. If I go back my childhood memories or this thing, so always I feel we should have money. So if we have money, so we can do this course. I can take the admission. So my next question is, what is success according to you? First of all, we have to be good human being to because is this dunya is temporary. So we all came for is a test of life, I can say. So success, we have to be live good life in this dunya, and we have to be our permanent life will be in akhirah. So we have to do good things and good deeds as much as we can in this dunya, so we'll get reward hereafter. So according to me, success, we have to be follow our deen and dunya, both things we have to be follow. Unbalanced. So if you can share something about your childhood. I'm very naughty student in my school days. So if anyone want to do some mimicry kind of things or games and also, so everyone they are involving me in my class. So in my childhood I was a class leader also. So my one of the teacher, he make me as a class leader because I'm very naughty. So this my childhood in my school. That's the key thing that you have. You can mingle with everybody very easily, and you can make them comfortable, and you can have and when you say something, people will listen to you. That's one quality that you have, I feel. So in your life, there are so many situations that you have faced. So my next question for you is what was running in your mind when in the last stage of Ammi? So what she said to you, what exactly happened, how you handled that situation, if you can share that thing. I feel in our life that everyone has faced. So what was what is you are thinking about that time?
how you manage all these things when like at the end of the last stage of Ammi. So what is there, you know, what she said to you? Did you spoke with her, or what exactly happened? So, which I remember clearly the word Ajju beta, like you are the elder in our family, यानी तू बड़ा बेटा है. So तुम सबको मतलब अच्छे से जिम्मेदारी से संभालना, लेके चलना, काइंड ऑफ थिंग्स लाइक शी टोल्ड मी इन द लास्ट वर्ड. एंड मतलब कैसे करोगे पता नहीं, लेकिन सबको लेके चलना ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बोल के मुझे बताए थे. तो वो बात मुझे लास्ट वर्ड उनके वो याद है. उसके बाद मैं इसके अलावा जो है मतलब हम लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, राइट? तो सब लोग हमारे कुछ ना कुछ एडवाइस देते हैं. तो उसमें आज तक आपको मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी बेस्ट एडवाइस जो है मतलब कोई दिए जिससे कि आप अच्छे से मतलब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है? जो एडवाइस, व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस दैट यू हैव एवर रिसीव? मतलब पहला जो लाइक फर्स्ट स्कूल, लाइक जो माँ का गोद होता है ना, जो वो पहला स्कूल होता है, स्कूल या मदरसा जिसको बोलेंगे हम. तो उसमें सबसे अच्छी एडवाइस और बेस्ट एडवाइस जो दिए थे वो अम्मी की रहती थी. क्योंकि भले ही वो मतलब हमेशा डांटते रहते या जो भी है, लेकिन उनकी एडवाइस ये थी कि तुम पढ़ लो, तुम पढ़ेंगे. मतलब बहुत सारे हमारे नेबर्स में भी उनके जो जान पहचान के लोग हैं उनके, उसमें हमेशा बोलते थे लोग उनको कि तुम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना करना. तो वो उनके एक दिमाग में या जहन में बात बैठी हुई थी अम्मी के. तो उनको ये एजुकेशन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू माई मदर. सो मतलब उनके जो भी जान पहचान के लोग थे, तो उन्होंने सब कुछ सबसे सुनते थे कि तुम बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, इतनी मेहनत करते हैं. तो अम्मी हमेशा बोलते थे कि अच्छे से पढ़ो. हमें मतलब पढ़ना, तुम्हारा अभी तुम्हारी जो स्टडी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ये एज में. तो तुम पढ़ाई करना. तो वहाँ से ही वो चीज़ इंस्पायर हुई. और मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब का इंसिडेंट है ये. तो तब क्या हुआ था, एक बार मतलब हमारे मतलब शादी हुई थी. तो शादी के टाइम पे कुछ पैसों की ज़रूरत थी. तो मुझे मतलब अपने जान पहचान के लोग हेल्प किए थे. तो मैं उनको एक प्रॉमिस किया था कि मैं आप ये पैसे जो दे रहे हैं तो मैं आपके पास काम करूँगा. जो भी उनका पास काम है वो काम करके मैं आपको 1 साल 6 महीने जो भी जब तक पैसे आपके पेमेंट हो जाएगा ना, तो तब तक मैं आपके पास काम करूँगा बोल के मैं बोला था. तब मेरा जो फर्स्ट ईयर डिग्री फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था. तो उसके बाद मैं सेकेंड ईयर में जाने वाला था, लेकिन बीच में मतलब बहन की शादी आ गई. तो पैसे लिए थे ऑब्वियसली, जब प्रॉमिस किए थे तो उनसे बात हो गई थी. तो मैं सेकेंड ईयर कंटिन्यू नहीं किया, जाके उनके पास काम करा. तो 1 साल काम किया, वो पैसे वगैरह सब दे दिए. तो उसके बाद मेरे मतलब वही बचपन की बात अम्मी की याद आई कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. तो वो हमेशा अनकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड में हमेशा एक फीड हो गया था मेरे के पढ़ाई सबसे ज़्यादा, तालीम सबसे ज़्यादा अहम है हमारी लाइफ में. तो मेरे जितने भी साथ के दोस्त वगैरह थे, क्लासमेट्स, वो सब, तो उनका तो चल रहा था कंटिन्यू पढ़ना. तो वो अम्मी की बात हमेशा मेरे जहन में रहती थी. तो वो मैं वहाँ से 1 साल कंप्लीट हो गया था, उनके पैसे वगैरह जो भी थे दे दिया. फिर वहाँ से मैं ये डिसाइड करा कि कम से कम मेरा एजुकेशन में MBA करना है. अब कैसे होगा वो पता नहीं, लेकिन MBA तो एटलीस्ट करना है. जब मेरा डिग्री फर्स्ट ईयर था, BCom कर रहा था मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद से. तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, फिर सेकेंड ईयर कंटिन्यू नहीं किया, वहाँ पे काम किया. फिर वहाँ से 1 साल कंप्लीट होने के बाद जब वापस आ गया, फिर मैं वही मतलब हैदराबाद से फिर कोहिर वापस आ गया. आके फिर सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया, लेके फिर वहाँ से कंटिन्यू किया. तो
मतलब मेरे हिसाब से एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो पढ़ाई को ज़्यादा फर्स्ट तरबियत, प्रायोरिटी मेरी मतलब मतलब जो जो भी यंग जनरेशन है, स्टूडेंट्स है अभी जिनकी मतलब पढ़ाई की उम्र है, तो वो लोग क्या है सिर्फ फोकस करना पढ़ाई पे। तो पढ़ाई से मतलब लाइफ में जो है ना, मतलब पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ को बहुत सीरियसली लेना यंग जनरेशन। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है मतलब खुद भी अच्छा बने और हम लोग को भी एजुकेशन में आगे तक मतलब सपोर्ट किए, जो भी मतलब हम लोग जैसा भी मतलब स्टडीज़ वगैरह किए, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई पर्सनली फील कि मतलब तुम तो अच्छा ही बने, फिर हमको भी साथ में लेके चलो। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ लाइक हाउ इज़ योर first job, like how you got your first job and what is the salary you got ऑन and पेपर what you इफ यू did से with that? माई फर्स्ट जॉब इज इन, जब पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जो फर्स्ट वाली जॉब जो थी वो एक्सिस बैंक की थी। फर्स्ट वाली जो जॉब थी एक्सिस बैंक की, उसमें मेरी जो सैलरी थी 8,500। सो 8,500 में जब मेरा मतलब एक महीना हुआ सैलरी आई, तो उसकी भी वो एक बहुत स्टोरी है, वो जॉब कैसे मिली कि हमारा मतलब मेरा MBA ख़त्म हो गया था, तो जॉब सर्चिंग के लिए मैं मतलब सब कंपनियों से जाता था, जो गच्चीबोली में बहुत सारे कंपनीज है, तो वहाँ पे गया था। 2-3 कंपनी जो बहुत विज़िट किया मैं, तो वहाँ पे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक आएंगे, फिर वहाँ से सिलेक्शन मतलब नहीं हुआ था, क्योंकि उनको लिमिटेड सीट्स थे और उनकी जो शायद रिक्वायरमेंट थी वो हमारे प्रोफाइल से मैच नहीं कर रही थी, शायद हो सकता। तो एक बार एक जॉब मेला लगा था अपने मेहदीपट्टनम में, गवर्नमेंट स्कूल में, अच्छी तरह से याद है मेरे को जॉब जो कैसा मिला ये जर्नी। तो मैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ कंपनीज आए थे जो लोगों को मतलब रिक्रूट करने के लिए, तो वहाँ पे अमेज़ॉन, जेनपैक, विल्स वर्गो और रिलायंस IT और इवन बैंकिंग के भी बैंक्स में भी हायरिंग हो रही थी। तो मैं वहाँ पे गया, सुबह मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करके वहाँ पे गया, तो 9 बजे कुछ गया था मैं, 9 बजे के आसपास सुबह। तो जब तक हमारा वहाँ पे 3-4 कंपनीज में दिया था मैं इंटरव्यू, तो वहाँ पे कहीं पे हुआ नहीं था, तो वो लोग इंटरव्यू ले लिए थे, CV ले लिए थे, ठीक है वी विल गेट बैक टू यू बोल के अब उनका था वो। तो वहाँ पे किसी से मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया था, लेकिन लास्ट में जब एक एक्सिस बैंक का भी था, तो चलो मैं सोचा कि इसमें भी ट्राई कर लेते हैं। इवन मेरा जो बैकग्राउंड था, मुझे मतलब फाइनेंस में जॉब करना बोल के इंटरेस्ट था उस टाइम पे, तो फाइनेंस में जॉब तो सर्च किया, लेकिन उस टाइम पे प्रॉब्लम ये था कि प्रॉब्लम नहीं बोल सकते उसको, लेकिन उनको रिक्वायरमेंट थी जैसे एक्सेल, टैली, एक्स्ट्रा SAP वगैरह, ये एक्स्ट्रा आपके पास डिप्लोमा टाइप के मतलब सर्टिफाइड कोर्सेज चाहिए एजुकेशन के साथ। हमारा अगर तुम MBA फाइनेंस किए, उसके साथ आपको एटलीस्ट टैली आना है, SAP अगर आ रहे, तो वैसे लोगों को वो लोग फाइनेंस में हायरिंग हो रही थी, प्रेफरेंस वो प्रोफाइल को दिया जा रहा था। तो फिर मैं सोचा आपके एक्सिस बैंक में है, यहाँ पे दे देंगे, इवन अगर सेल्स का भी जॉब है तो ठीक है बोल के मैं गया। जब 6 बजे, 9 बजे से 6 बजे तक ऐसे इंटरव्यू हुआ, 6 बजे जब नंबर आया था, तो वहाँ पे वो क्लोज हो गया था, तो वो बोले कि आप कल शाम के 6 बजे, तो वो लोग बोले कि कल आ जाओ आप, कल आना है। तो वहाँ पे एक मुझे अच्छी तरह याद है, उसका नाम अभिजीत था, वो HR जो इंटरव्यू लेने वाला था। तो बोला कि मोहम्मद अभी तो मतलब यहाँ पे टाइम ख़त्म हो गया, तो हमारा ये ऑफिस का हेड ऑफिस का एड्रेस है, NDC बिल्डिंग कुछ था वो सिकंदराबाद में, वहाँ पे वो एड्रेस दिया, तो वो एड्रेस पे हाँ मैं नेक्स्ट डे गया। मैं गया, जाने के बाद फिर वहाँ पे भी इंटरव्यू के लिए मतलब 9-10 बजे बुलाए थे वो लोग, उस टाइम पे गया मैं, जाके वहाँ पे भी गया, ऑलमोस्ट 20-25 लोग ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए थे।
तो सबका इंटरव्यू हुआ डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो उनके पास जो ओपनिंग थी वो सेल्स में था। वो सेल्स में बहुत सारे प्रोफाइल थे उनके पास, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, लाइक ऑटो लोन वगैरह। तो उसमें क्रेडिट कार्ड का भी था। तो क्रेडिट कार्ड में वो लोग क्या किए, मुझे फ्रेशर है बोल के, तो वो लोग क्रेडिट कार्ड सेल्स में लिए थे वो। तो सेल्स में जो हुआ था, जो फर्स्ट सैलरी जो बताए थे मुझे 8500 थी। तो मैं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जॉब मिलना बहुत, वो जॉब अगर मिला तो ही हम सरवाइव हो सकते, उस तरह से सिचुएशन थी। सरवाइव इन द सेंस यानी कि एजुकेशन को भी यूटिलाइज करना है और तुम ग्रो भी करना है। तो एटलीस्ट स्टार्टिंग इवन अगर सैलरी कम भी है तो ज्वाइन करेंगे एक्सपीरियंस के लिए। तो 8500 मेरा सैलरी था उस टाइम पे। जब मेरा ये हायरिंग हुआ, वो इंटरव्यू लिया, उसके बाद जिसको मैं रिपोर्टिंग करना था वो मेरा मैनेजर था। वो मैनेजर के पास मैं गया, फिर उन्होंने सेलेक्ट किया मुझे। तो वो सेलेक्ट जब किए थे, फिर उस टाइम पे मेरे पास आई थिंक बाइक वाइक तो कुछ था नहीं, गाड़ी नहीं थी मेरे पास, तो मैं बस से ही आते जाता था। तो सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पे एक मेरे अंडर में मतलब पांच ब्रांचेस दे दिए थे वो लोग। तो इसमें चार मीनार है, चंद्रायन गुट्टा, टोटल 5 ब्रांचेस दिए थे। वहाँ पे हमें क्या करना रहता था, वर्क के जो कस्टमर्स हमें एफडी कराते थे, फिक्स डिपॉजिट कराते थे, तो हम सिक्योर कार्ड डिपार्टमेंट में वो लोग मेरा हायरिंग किए थे। तो वो डिपार्टमेंट में मेरा काम था। तो जो लोग एफडीज करते हम उनको क्रेडिट कार्ड देते थे एज ए सिक्योर प्रोडक्ट बोल के। तो जब पहली जो सैलरी आई थी 8500, तो वहाँ पे मेरा मैनेजर मतलब बहुत सपोर्टिव था वो। तो वो बोला कि आप फर्स्ट सैलरी है तो आप स्वीट लेकर जाओ तुम घर पे। तो मैं मिठाई वो लेके गया था। तो बाजी वालों के पास गया था, बाजी के पास, तो लेके जाके वो मिठाई उनको सबको खिलाया था मैं। के बाद मैं मतलब जहाँ पे भी मैं काम किया तो हर जगह मतलब मेरा उसमें परफॉर्मर या स्टार ऑफ द मंथ इस तरह से, तो वो एक्सिस बैंक में बहुत मतलब नाम हो गया था। अच्छा था, फेमस हो गए थे जिसमें थोड़ा बहुत जो भी बोलेंगे। तो ऑन एन एवरेज मतलब 8.5 से अंटिल मतलब 15,000 तक इस तरह से आता था मेरे को, क्योंकि कमीशन वाइड हो गई करके। तो अच्छा पैन इंडिया में मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग हुआ था कार्ड का जब। और मतलब इससे मैं पर्सनली ये मतलब समझ रहा हूँ और सीख रहा हूँ कि आप मतलब स्टार्टिंग से गिव अप नहीं किए कभी भी कोई भी सिचुएशन में। एग्जांपल, जब आप इंटरव्यू के लिए जब गए थे, पूरा मॉर्निंग 9 बजे से मतलब 6 बजे तक आप जब थे, और मतलब नेक्स्ट डे भी आओ बोल के बोले, तो वो टाइम पे थोड़े लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, गिव अप कर देते कि यार पूरा दिन मैं ठहरा बट जो है नहीं हुआ मेरा। फिर सेकंड डे गया तो होता नहीं होता पता नहीं, बट फिर भी आप ट्राई किए, वो एक। और सेकंड थिंग मैं आपसे ये सीख रहा हूँ कि मतलब स्टार्टिंग में आपकी सैलरी जितने भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, एटलीस्ट जॉब आप करो, उसमें आप अपना परफॉर्मेंस बताओ, उसके बाद आपको फ्यूचर में और भी रास्ते बनते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो है मतलब एग्जांपल मेरे को इतनी सैलरी मिली तो ही मैं जॉब करूँगा स्टार्टिंग में, नहीं तो नहीं करूँगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा मतलब खाली रह जाते हैं। स्टडीज़ होने के बाद, आफ्टर क्वालिफाई होने के बाद भी सैलरी का मतलब कम रहने की वजह से वो लोग जो है उसमें आगे नहीं जाते। क्योंकि हमें एग्जांपल 50,000 चाहिए, हमें 1 लाख ही चाहिए सैलरी स्टार्टिंग में। तो आपको मतलब 8,000 सैलरी मिली तो भी उसको मतलब एक्सेप्ट करके उससे आप ये भी एक बहुत मतलब सीखने वाली बात। The next part is going to come very soon, and if you think and feel that yes, my story can change at least one person's life, then you are heartily welcome to my show. This video, if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, MN Mujahid Show, #I share, we inspire. Thank you so much.